Hello everyone, my name is Dev Chatterjee and we will discuss the next questions of the paper 24/7/2016. Okay, let's start. Now question number 171, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn. Okay. The magnetic field at the center of the loop is B. Magnetic field is given B. It is then bent into a circular coil of n turns. Now it is bent into n turns. We have to find the magnetic field at the center of this coil of n turns. So we have to find the magnetic field at the center of this coil. Okay. So first we will see that it is given that there is a wire is there. The length of the wire is for say L. Okay. Now this wire is bent into a circular coil of 1 turn. So for say the circular coil is there and the radius of the circular coil is R. Clear? Now what will happen? The circumference of the circular wire will be equal to the length of the wire. So from this we can write that L is equals to 2 pi R. Clear? So from here we will get R equals to L by 2 pi. Okay. Now what is the equation of magnetic field at the center of a circular coil? So the equation is B equals to mu naught I by 2 R. Okay. Now here the value of R is L by 2 pi. So we will put the value here. Okay. Put the value of R here. So it will become mu naught I by 2 into, now R is given how much? R is given L by 2 pi. So it is L by 2 pi. Now solve this, 2 and 2 will cancel out. It will become mu naught I pi by L. Okay. So this is the value of B magnetic field in the case of first case when there is 1 turn is there. Now the same coil is bent into n number of turns. Okay. It is then bent into a circular coil of n turns. Now what will happen? This will become a new circle for say, the radius will become R dash. Okay. And the number of turns is n. Now what will happen with the circumference of this circle? Now the total length in this case is also L. In this case the total length is also L. So in this case L will become equals to n into 2 pi for say if this is R dash, no R dash. Okay. The circumference of the circle is L, but the number of turns is n, the radius is R dash, so L will become equals to n into 2 pi R dash. Okay. So from here we can write that R dash is equals to L by 2 pi n. Okay. Now what will be the magnetic field at the center of the coil in this case? So magnetic field in this case for say B dash is equals to mu naught n I by 2 R dash. Okay. Now we will put the value here. The value of R dash is, we will put the value of R dash here. The value of R dash is L by 2 pi n. So we will put the value here. So it will become L by 2 pi n. Okay. Now n and 2 and 2 cancel out. So this n will go upside. So it will become n square. So it will become n square mu naught I by. Now this will become how much? L. Okay. Now this pi will also go up. So it will become n square mu naught I pi by L. Okay. Now what is this value? Mu naught I pi by L. This value is B. So in this place, in the place of this particular value you can write B. So this equation will become B dash equals to n square. In the place of this one mu naught I pi by L, mu naught I pi by L will put B. So it will become B. So B dash is n square B. So an answer will be option number 3, n square B. Clear? Now next question, a bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. Okay. The energy required to rotate it by 60 degrees W. Now the torque required to keep the magnet in this new position. I have to find the torque required, okay, to keep the magnet in this new position. I have to find the value of torque with respect to the work done. You have to keep in mind, you have to find the value of torque with respect to work done. Okay. So what is the equation of torque? The equation of torque is mb sin theta. So we will write here mb sin theta. Now what is the value of theta here? Now it is given that it rotates by 60 degrees. The value of theta will be 60 degree. Okay. Now next is work done. So what is the work done in this case?
what is the equation of work done in this case? The work done equation will be mb 1 minus cos theta. Okay. Now, in the initial position theta will be 0, therefore cos 0 1, therefore it will be 1. Okay. Now, it is rotated by 60 degrees, so it will become cos 60. Okay. Now, this is equation 1 and this is equation 2. Clear? Now, we will divide equation 1 by equation 2. So, we will get what? We will get torque by W is equals to, now MB will cancel out. So, it will become sin 60 by, it will become sin 60 by 1 minus cos 60. Okay? 1 minus cos 60. So, what is the value of sin 60? Root 3 by 2. Okay. And what is the value of sin 60? Sorry, what is the value of sin 60? Root 3 by 2. What is the value of cos 60? 1 by 2. So, 1 by 2. So, it will become root 3 by 2 by 1 by 2. So, it is root 3. Okay. So, what will be the torque? Torque will be, the torque will be root 3 W. Torque will be root 3 W. So, the answer is root 3 W, option number 3. Clear? Now, next question, it is given that an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of this. So, the magnetic field is given. If the value of E by m is this, the frequency of revolution of the electron, we have to find the frequency of revolution of electron. Clear? Now, look, this electron is moving in a circular path, and for any circular path we required a centripetal force. Okay? The force which is making the particular electron move in a circular path. So, here the centripetal force will be given by which force? So, here the centripetal force will be given by the magnetic force. So, what is the equation of centripetal force? mv square by r. This is the equation. Now, in this case the centripetal force will be given by magnetic force, and what will be the magnetic force in an electron? So, you know the equation of magnetic force, F is equals to qVb. So, in this case it will become qVb. Here q is the charge, v is the velocity, and b is the magnetic field. So, it will be equals to qVb. Okay. Now, from here we can derive the value of, now this v square and v will cancel out. So, we can write that v by r is equals to qb by m. We can write this v by r equals to qb by m. Okay. Now, next is v is equals to r omega. Okay. So, from here we can write omega equals to v by r. So, in place of v by r we can write it as omega. Okay. From there v by r equals to omega. So, in this place of v by r we can write it omega. Now, what is the relation between omega and frequency? So, we know that omega is equals to 2 pi f. This is the relation. So, we have to find the value of f. So, f will become how much then? F will become omega by 2 pi. Okay. Now, put the value of omega here. So, omega will become qb by m. This is 2 pi. So, qb by m. So, it will become omega in place of omega qb by m, and this is 2 pi 2 pi. So, qb by 2 pi m. Okay. Now, next in this we can see that the value of E by m is given, and here q is there and m is there. Now, here q is equal to what? Since it is an electron, the value of q will be equal to E. So, in place of q we can write E. So, it will become E by m. So, in place of E by m we can write this value. So, it will become 1.76 into 10 to the power 11. Okay. Now, the value of magnetic field is given. So, it is 3.57 into 10 to the power minus 2 by, now this is done, q by m is done, b is done, only 2 pi is there. So, it will 2 into 3.14. Okay. And we will solve this one. After this, when we will solve this one, we will get the value equals to 10 to the power 9 Hz. Okay. So, 10 to the power 9 Hz is equal to 1 gigahertz. So, answer is option number 2.
Clear? Next. Now, which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? Okay. Now in this 4 options are given. Now look, here it is given that tuning of an LCR circuit. So first you have to understand that better tuning is possible, okay. Better tuning is possible in which selectivity is high, okay. Selectivity is high, okay, and selectivity is high in the cases in which quality factor is high. In the cases in which quality factor is high. So, we will check which of the following has the highest quality factor. So, the equation of quality factor Q is equals to 1 by R root under L by C. Okay. Now, here we can see that the Q is directly proportional to L and inversely proportional to R and C. So, that out of 4 the one which will have maximum value of L and the minimum value of R and C will be the answer. So, we will check one by one. Okay. For this one, for option 1 R is 25, option 2 R is 20, option 3 R is 25, option 4 R is 15. So, in this case option is for L we are getting that, sorry, for R we are getting the minimum value need is 4. So, option 4 could be the answer. Okay. Now, we will check for L. The L need to be the maximum. So, here in this case it is 1.5, in this case it is 1.5, in this case 2.5, in this case 3.5. So, in the case also again 4 is the answer, it is the maximum value for L. So, 4 could be the answer. Okay. Now, next one C, for C we will see the minimum value. The minimum value is out of these 3, the minimum value is again for 4. So, if you do one thing, if you put the value of 4 here for say, okay, if you put the value of 4 here, okay, so we will get 1 by, now R is given 15, so 15, now L by C, now L is given 3.5, so 3.5, okay, and the value of C is given, so C is given in microfarad, so we can write 10 to the power minus 6, okay. I will solve this one, we will get the value equals to 13.67, okay. So, the maximum value of Q will come for the 4th option. So, if we will check one by one also we will get the 4th as the maximum value of Q. So, the answer will be option number 4. Okay. Next question, a uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. Loop 1 of radius r greater than r, okay, encloses the region r, and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field as shown in figure below. Then the EMF generated is. अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, EMF generated क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ ये हम देखेंगे. पहले देखेंगे विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस r, ठीक. तो अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन रीजन ऑफ रेडियस r. तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रेडियस पे रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, ठीक है. अब उसका रेट क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ dB बाई dt. तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है EMF जनरेटेड. तो EMF जनरेटेड का इक्वेशन क्या होता है, EMF जनरेटेड E इक्वल्स टू माइनस d∅ बाई dt, ये होता है इक्वेशन, ठीक है. अब हम पहला केस में देखेंगे, पहला लूप के केस में EMF क्या हो जाएगा, तो E1 माइनस ऑफ d∅ बाई dt हो जाएगा. अब फाई क्या हो जाएगा इस केस में, तो फाई क्या होता है, तो फाई होता है B डॉट ए और बी ए, ठीक है. तो इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है तो पाई आर स्क्वायर. तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है मान लीजिए तो लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू बी पाई आर स्क्वायर. अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या है, बी पाई आर स्क्वायर. सो डी पाई आर स्क्वायर, ठीक. ठीक है. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ठीक. तो क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी. अब नेक्स्ट E2 क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि
ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स कहाँ पॉसिबल है, फ्लक्स कहाँ पे पॉसिबल, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कहाँ पे पॉसिबल, फ्लक्स वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन सेकंड केस में क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो किस ऑप्शन में है, माइनस ये डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन लूप 1 में, और लूप 2 में 0। तो लूप 2 में 0 इन दोनों केस में है, ठीक है, तीनों केस में है। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन पहला ऑप्शन किस में है, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी सिर्फ इसी में है, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली इन एन LCR सर्किट। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, ओके, पावर फैक्टर हमें निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है VR दिया हुआ है 80 वोल्ट, VC दिया हुआ है 40 वोल्ट और VL दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है। तो हमें पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है आपका R/Z, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम अगर इसके फॉर्म में लिखें, वोल्टेज के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं IR/IZ, ठीक। अब यहाँ पे IR कितना हो जाएगा, IR कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है वैल्यू, पहला केस में 80 वोल्ट, सो ये हो जाएगा 80, ठीक, बाई, अब ये Z कितना आ जाएगा, तो Z आ जाएगा आपका VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक, अब इसका क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 80 का स्क्वायर प्लस, अब ये VL माइनस VC क्या हो जाएगा, तो VL 100, VC 40, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 40, तो 60 आ जाएगा, तो 60 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.8, तो इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर हो जाएगा 0.8, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें दिया हुआ है कि 100 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सोर्स, ओके। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, सो हमें पीक वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अब क्या क्या दिया हुआ है, 100 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। हमें निकालना है कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ to solve this question, okay. Now what will the value of Z in this question? So what will the value of Z in this question? So ये given है, resistance given है 100, so क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, अब एक कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 100, तो ये भी हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ओके। तो Z इक्वल्स टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो R दिया हुआ है 100, 100 का स्क्वायर प्लस XC कितना दिया हुआ है 100, तो 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100√2 हो जाएगा ना, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो 2 100 स्क्वायर, तो ये 100 बाहर आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि हमको निकालना पीक वैल्यू, तो हमें निकालना आई मैक्स। तो आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स होता है वी मैक्स बाई इसका वैल्यू जेड, ओके। अब ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि हमें वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, तो वैल्यू हमें दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सोर्स, तो ये जो वैल्यू होता है ये VRMS होता है,
ठीक है। और इसका रिलेशन और इसका क्या रिलेशन होता है कि V max इज इक्वल टू √2 VRMS। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू RMS का दिया हुआ 220, तो ये वैल्यू हो जाएगा 220√2। ओके, ये हो जाएगा 220√2 ये वैल्यू, क्योंकि ये जो 220 होता है ये होता है RMS वैल्यू। ठीक, अब Z कितना है यहाँ पे, तो Z अपना है 100√2। सो पुट द वैल्यू हियर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना वैल्यू आ जाएगा IMX का 2.2। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2.2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट अब ये दिया हुआ है टू आइडेंटिकल ग्लास refractive index 3/2 equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. Focal length f each are kept in contact. The space between that two lenses is filled with water. दोनों के बीच का जो एरिया है वो वाटर से फिल्ड किया हुआ है, ठीक है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम किस तरह से बन सकता है. ठीक, ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, ठीक है. अब ये जो एरिया है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज फिल्ड विथ द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर. तो ये एरिया वाटर से फिल्ड किया हुआ है, ठीक. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4/3, ठीक है. अब इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/2 और ये भी दिया हुआ है 3/2, ठीक है. तो हमें निकालना है क्या, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, ठीक है. अब यहाँ पे ये अगर ये मान लो R लेते हैं हम, तो ये भी क्या हो जाएगा R, दिस सरफेस R, दिस सरफेस इज ऑल्सो R. तो ये सरफेस भी R हो जाएगा और ये सरफेस भी R हो जाएगा, चारों R हो जाएंगे, ठीक है. तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे लेंस मेकर फार्मूला. तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है. ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे पहला लेंगे, पहला लेंस के लिए, तो पहला लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2. हम वैल्यू पुट करेंगे 3/2 माइनस 1, ठीक है. अब पहला सरफेस का ये R है तो हम लिखेंगे R. अब दूसरा सरफेस का ये बताओ, पहला का अगर R होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा -R. तो ये हो जाएगा -R, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इसको -1/R, ठीक है, -1/R. तो फिर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा अपना, इधर सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस 1, तो 3 - 2/2, तो 1/2 इंटू, अब ये वैल्यू आ जाएगा 1/R प्लस 1/R, तो ये आ जाएगा अपना 2/R, तो विच इज इक्वल्स टू 1/R. तो 1/f का वैल्यू कितना आया, पहले लेंस के केस में आया 1/R, ठीक है. अब सेकंड लेंस हम लेंगे ये कनकेव लेंस, ठीक है, ये जो पानी का बना हुआ इसको लेंगे. अब इसमें सेम ये फार्मूला लगाएंगे. तो इसमें अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो फिर ये वैल्यू कितना आएगा अपना 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं 1/f डैश इज इक्वल्स टू द सेम फॉर म्यू माइनस 1. तो म्यू का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 माइनस 1 इंटू, अब ये सेम फार्मूला लगेगा 1/R1 माइनस 1/R2. तो अब ये बताओ, ये सेकंड जो है ये फर्स्ट सरफेस है इसके लिए, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा R का, तो ये वैल्यू है माइनस में, तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे इसका R1 के बदले लिखेंगे -1/R, ठीक. अब फिर माइनस, अब इधर वाला जो R है ये R है, ये प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1/R, ठीक है. तो ये -1/R हो गया. अब ये माइनस होता तो माइनस तो रह जाएगा, ये प्लस R है तो वैल्यू पुट कर दिए R, तो -1/R माइनस 1/R. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 माइनस 1, तो 4 - 3, तो 1/3 इंटू -2/R. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3R. तो पहला का क्या आ गया f, पहला का f का वैल्यू आया 1/R, दूसरा का क्या आया -2/3R, ठीक है. तो तीसरा का क्या आ जाएगा, तीसरा का क्या आ जाएगा, तो तीसरा का भी सेम आएगा, ठीक है, 1/R. तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा इसके आगे, ठीक है. तो इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं अगर,
तो ये आ जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये क्या है 1/f पहला केस में क्या है ये 1/f, तो आ जाएगा 1/f, ठीक है, प्लस अब दूसरा केस में क्या है -2/3r, तो -2/3 अब 1/r के बदले हम लिख सकते हैं 1/f, तो ये आ जाएगा 1/f और -2/3f, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस में भी आ जाएगा 1/f। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 -2, 3 आ जाएगा, फिर ये -2 आ जाएगा और फिर ये +3 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 तो 4/3f, ये आ जाएगा ना, 6 - 2 4 तो 4/3f। तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर, f इक्विवेलेंट हो जाएगा 3f/4, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन का f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3f/4, क्लियर। इसमें सिंपल हमें लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करना है और 1 बाय 1 सॉल्व करना है, उससे मेरा पहले वैल्यू आ जाएगा, फिर उन सारे वैल्यू को एक जगह बिठा देना है, फिर उसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से है, ठीक है। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और इस 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस, मीन्स अपेरेंट डेप्थ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर पहला केस में, और जब दूसरे साइड से देखते हैं तो वो 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट साइड, ठीक है। हमें थिकनेस निकालना है स्लैब का, तो हम ये मान लेते हैं कि एक स्लैब है जिसका की लेंथ है l, ठीक है, जिसका लेंथ है l, टोटल लेंथ। अब हम मान लेते हैं कि एक साइड से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अपेरेंट डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस अपेरेंट डेप्थ दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि रियल डेप्थ एक साइड से है x, ठीक है, और टोटल स्लैब का लेंथ है l, ठीक। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई म्यू, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इस केस में, पहला केस में देखो अपेरेंट डेप्थ क्या है, पहला केस में अपेरेंट डेप्थ है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू, अब पहला केस में रियल डेप्थ हमने क्या लिया, पहला केस में रियल डेप्थ निकाला x, तो 5 इक्वल्स टू x बाई म्यू, ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, दूसरा केस में अपेरेंट डेप्थ कितना है 3, तो हम लिख सकते हैं अपेरेंट डेप्थ 3 इक्वल्स टू, अब रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, अब ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस एक्स, तो दूसरे केस में रियल डेप्थ क्या हो जाएगा l माइनस एक्स, ठीक है। अब बाई म्यू, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देता है, तो क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, सो 8 इज इक्वल्स टू x बाई म्यू प्लस l माइनस एक्स बाई म्यू, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, म्यू x प्लस l माइनस एक्स, एक्स प्लस l माइनस एक्स, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर l इज इक्वल्स टू, l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l इक्वल्स टू 8 म्यू, सो 8 म्यू। अब म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ हमें 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 से 4 और 4 3 12, तो l कितना आ गया हमारा, l आ गया 12 सेंटीमीटर्स, क्लियर। बस इसमें रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का यूज़ करना है और कुछ बस कैलकुलेशन करना है, ये फार्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो Imax माइनस Imin बाई Imax प्लस Imin विल बी। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो अगर पहला अटेम्प्ट में नहीं हो तो दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, बस लेंथी है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ ये देखना है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ रेशियो इंटेंसिटी n, इंटेंसिटी रेशियो दिया हुआ है,
तो इंटेंसिटी रेशियो मतलब क्या, अगर हम पहला का ले लेते हैं, मान लो I1 है, पहला का इंटेंसिटी, 2 कोहेरेंट सोर्सेस है, तो पहला कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी अगर I1 है और दूसरा का अगर I2 होगा, तो हम लिख सकते हैं ना कि I1/I2 इक्वल्स टू n, क्योंकि दिया हुआ है इंटेंसिटी रेशियो, ये अपने तरफ से मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I max और I min का निकालना है। तो I max क्या होता है, तो हमें पता है कि 2 अगर सोर्सेज दिए हुए, तो I max क्या हो जाएगा उसका, I max होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। 2 सोर्सेज है, एक का इंटेंसिटी अगर I1 है, दूसरा का अगर I2 है, तो उसका I max क्या हो जाएगा, उसका I max हो जाएगा √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों को √I2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो √I2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा ये, तो इधर ये आ जाएगा √I1/I2, और इधर क्या आ जाएगा ये, इधर आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो 1/I2/I2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, I1/I2 का वैल्यू है √n। इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा √n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे I मीन। तो I मीन अपना क्या आएगा, तो I मीन आ जाएगा, यहाँ प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम केस करना है, इसको डिवाइड कर देना √I2 से। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1/I2 माइनस 1, सो I1/I2 माइनस 1 हो जाएगा। तो I1/I2 के बदले से लिख ही देता हूँ मैं, जैसे कि ये हो जाएगा I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, √I2 से डिवाइड करेंगे तो। अब I1/I2 का वैल्यू n है, तो ये क्या आ जाएगा, ये √n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास I max आ गया, I min आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को इसमें बैठाना है, I max माइनस I min बाई I max प्लस I min, ओके। तो हम ये वैल्यू साइड में लिख लेते हैं। I max का जैसे आ गया कितना, √n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये I max आ गया, और I min क्या आ गया, I min आ गया √n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, I max माइनस I min बाई I max प्लस I min, ओके। अब I max का वैल्यू क्या आया था, I max का आया था √n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। I min का क्या आया था, √n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे में सेम वैल्यू बैठाना है, तो √n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस I min √n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आ गया अपना I max माइनस I min बाई I max प्लस I min। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब माइनस में तो क्या आ जाएगा, फिर ये इसको माइनस में को सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ये नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2√n, तो माइनस माइनस प्लस 2√n हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये देखना क्या क्या कटता है यहाँ से, ठीक है, हमें देखना है यहाँ से क्या क्या कटेगा। तो n कट जा रहा, प्लस 1 माइनस 1 कट जा रहा, तो ये अपना आ जाएगा
4√n। ठीक, नीचे में क्या क्या कटेगा, नीचे में ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n + 2। तो हम लिख सकते हैं 2n + 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n + 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√n बाई n + 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे इस रेशियो का, इसका आंसर आ जाएगा 2√n बाई n + 1। सो 2√n बाई n + 1। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये हमारा इस पूरा पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है 24/7/2016 का। इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन देखा जो कि टफ है, थोड़ा टफ है, कुछ क्वेश्चन देखा जो कि इजी है, कुछ लेंदी है। तो हमारा अप्रोच हमें से ये रहना चाहिए कि हमें जो इजी क्वेश्चन वो पहले बनाना है और उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है या कैलकुलेटिव उनको उसके बाद बनाना है। ओके, थैंक यू।